Very warm welcome to all of you. Very good evening. Today, I don't just see student in front of me. I see future professionals, confident speakers, dreamer and achiever. So first of all, this side, Rukaiya Badar, your spoken English trainer. Thank you for trusting me and becoming a part of this journey. Your presence here tells me one thing. You want to grow, and that decision itself makes you different. Okay, so many people want success, very few people want to take action. Today, by joining this class, you have taken action. I know some of you may feel nervous, some of you may hesitate while speaking, some of you may think, will I really be able to speak fluently? ऐसा है ना, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नर्वस हैं, हेजिटेशन है, एंड कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या मुझसे हो पाएगा, क्या मैं बोल पाऊंगी इंग्लिश फ्लुएंसी के साथ. सो लेट मी टेल यू समथिंग वेरी क्लियरली. Yes you can, and yes you will. So you can write in chat box, I can and I will. This will be your powerful mantra. Excellent. Spoken English is not about showing off. It is about expressing yourself with confidence. कई बार आप देखोगे जो नहीं बोल पाते. Let's be frank with each other, guys. Okay? कई बार yes, I can see, I can, I will. Lovely, lovely audience. So कई बार आप देखोगे कई जगह पे जब आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो and somebody in front of you is speaking in English, तो दो चीज आपके माइंड में आता है. पहला, यार क्या मस्त इंग्लिश बोल रही है ना. दूसरा, कितना शो ऑफ कर रही है. ठीक है, सो वी हैव टू कैटेगरी पीपल. एक बहुत मस्त बोल रही है एंड अनदर वन कितना शो ऑफ कर रही है. नो, स्पोकन इंग्लिश इज नॉट अबाउट शोइंग ऑफ. इट इज अबाउट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ विथ कॉन्फिडेंस. जब किसी के अंदर हाई लेवल कॉन्फिडेंस होता है तो ऑटोमेटिकली वो हाई जगह पे, हाई प्रोफाइल पे पहुंचकर इंग्लिश निकल ही जाता है. It is about expressing yourself with confidence. It is about opening doors of opportunity. जब आप इंग्लिश बोलना चालू करते हो किसी भी इन्वायरमेंट में, आप देखना आपको अटेंशन मिलना चालू हो जाएगा. People will start recognizing you. It is about creating a strong first impression in the practical world. In this class, you are allowed to make mistake. आप बिल्कुल मिस्टेक करो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है. यू आर अलाउड टू पॉज. बीच में बोलते बोलते रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. यू आर अलाउड टू लर्न एट योर पेस. आप अपने स्पीड से चीजों को सीखने की कोशिश करो. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट यू आर नॉट अलाउड टू गिव अप. किसी भी तरीके से मैं अपने स्टूडेंट को हार मानने नहीं दूंगी. I promise to guide you, support you, and push you whenever needed. But एक डील है हमारे बीच. You have to be consistent. Your consistency, your practice, and your dedication, that must come from you. ये आपकी तरफ से मुझे चाहिए ही चाहिए. Remember, confidence doesn't come in one day. एक दिन में आपको नहीं मिलेगा ये ताकत. ये जो कॉन्फिडेंस है ये आपको एक दिन में नहीं मिल सकता. It comes with daily effort. So from today onwards, speak without fear in my class, ask question without any hesitation, participate actively, believe that you are capable of more than you can think. So let's learn together, grow together, and succeed together. So are you guys ready? I want everyone to send lots of heart, lots of thumbs up, lots of clap, lots of crackers. जो भी रिएक्शन आपको देना है, जो भी आपके मन में है, खुल के आज इस रिएक्शन को आप दो. एंड एक ऐसा एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं जहां बिना किसी को नीचे खींचे आगे बढ़ना है. ओके okay? इस रिएक्शन के साथ आई रियली वांट चैट बॉक्स में आई कैन एंड आई विल
I can and I will. I can and I will. Love to see your dedications and your replies, your messages. Excellent audience. This is called powerful class, powerful student, and yes, obviously, powerful mentor. Thank you so much, guys. Thank you so much. So let's start this journey. This is our first day. और मैं बिना ज्यादा इंग्लिश बोले अभी के लिए फिलहाल बेसिक हम हिंदी एंड थोड़ा बहुत इंग्लिश में बात करेंगे बिकॉज आई नो मेनी ऑफ यू हैव डिफिकल्टी इन दिस लैंग्वेज. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी. आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन. जस्ट हेल्प मी आउट इन द चैट बॉक्स वेदर माई स्क्रीन इज विजिबल और नॉट. ओके. Help me out, guys. Yes, visible. Thank you. Thank you. Wonderful. Wonderful batch, I can say. जितनी बार नई बैच शुरू हो रही है एक चीज मैं देख रही हूँ, उतने ज्यादा डेडिकेटेड मेंबर्स आ रहे हैं. पिछले बैच में भी जो था उससे अब डबल एनर्जी, डबल डेडिकेशन मुझे यहाँ दिख रहा है. यस, विजिबल. ओके. फॉर टाइम बीन आई एम डिजेबलिंग द चैट बिकॉज अब यहाँ पे हम थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट में फोकस करेंगे. Yes, thank you. I have disabled the chat. Now, let's check it out. What is a word? Because we are starting from basic to advanced, so basic के लिए हम आज basic से शुरू करेंगे. And हमारा जो first basic है, obviously A, B, C, D हम नहीं करेंगे. इतना सभी को पता है. We'll start with what is a word. Word क्या है? चलो ठीक है. मेरे स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आप लोगों से ही पूछ लूं, वर्ड क्या है? राइट डाउन इन चैट बॉक्स. जो भी, इफ यू वांट टू राइट इन हिंदी, क्या है वर्ड, यू कैन राइट इट. एक वर्ड में आंसर इन चैट बॉक्स. वर्ड क्या है जिससे कोई वर्ड बने? शब्द, अल्फाबेट. ओके. ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट. देखकर नहीं बोलना है. आप एक वर्ड बताओ. वर्ड, व्हाट इज वर्ड? यस, शब्द. सिंपल. दिमाग लगाओ गाइस. मेरे डेफिनेशन को कॉपी मत करो. सिंपल. वर्ड, वर्ड क्या है? शब्द. यस, जिन्होंने भी शब्द लिखा मेरे तरफ से हाई फाई. ओके, चलो. थैंक यू. सो व्हाट इज अ वर्ड? अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स विच मेक सेंस इज कॉल्ड वर्ड. वर्ड क्या है? ग्रुप है अल्फाबेट्स का. अल्फाबेट क्या है? ए बी सी डी ए टू जेड. जब ये कुछ अल्फाबेट मिलकर जब एक वर्ड बनता है एंड उसका कोई मतलब होता है विच मेक सेंस, उसे हम कहते हैं शब्द. उसे हम कहते हैं वर्ड. ओके. सो ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स विच मेक सेंस इज कॉल्ड वर्ड. एग्जाम्पल, OGD. दिस इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड, राइट? OGD ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, बट क्या ये इसका कोई मतलब है? OGD, नो सेंस. तो वर्ड की एक खासियत है, वर्ड सिर्फ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स नहीं है. ग्रुप ऑफ अल्फाबेट के साथ जिसका कोई मतलब बनता है, दैट इज कॉल्ड वर्ड. सो OGD, नो सेंस, बट ग्रुप ऑफ वर्ड है. लेकिन इस OGD को जब हम कन्वर्ट करते हैं एक प्रॉपर वर्ड पे जिसका कोई मतलब बनता है, जैसे कि GOD, गॉड. DOG, डॉग. ग्रुप ऑफ अल्फाबेट विच मेक सेंस, मतलब बनता है गॉड, खुदा. डॉग, डॉग. ठीक है. डॉग, डॉग समझ जाओ. सो गॉड, डॉग. अगेन, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ETA, नो सेंस. ग्रुप ऑफ वर्ड बट नो सेंस. अगर हम इसको ट्रांसफर करते हैं सेंसिबल वर्ड पे, तो EAT, ईट मतलब खाना. TEA, टी मतलब चाय. So, a group of alphabet which makes sense is called
word. Example, God, eat. Clear, guys? You can take the screenshot and remember one thing. जो भी असाइनमेंट मैं आज दूंगी, यू जस्ट नीड टू सेंड द असाइनमेंट, नॉट द फुल हिस्ट्री. ऐसा नहीं कि ये स्क्रीनशॉट लिया एंड इसका नोट्स बनाकर आपको आपने टेलीग्राम पे सेंड कर दिया. नहीं, ओनली द असाइनमेंट एंड आफ्टर एवरी क्लास you will get the assignment. Okay, so I think so this much is clear. Let me check it out in chat box. We have 285 members. Excellent. जो भी पंचुअल नहीं है प्लीज पंचुअल हो जाओ, अदरवाइज अगर आप थियोरेटिकल पार्ट मिस करोगे तो आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आना है. सो बी पंचुअल. 8 मतलब 8. ओके, शार्प 8. ओके, डन. क्लियर गाइज? राइट, सी. ओके, एक्सीलेंट. अगर ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आज ही रात से बादाम भिगो एंड चनमप्राश, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, थैंक यू. अब इसको मैं डिसेबल कर दूं थोड़ा सा. नेक्स्ट, rearrange the alphabets to create a word which makes sense. अब मैंने कल के ओरिएंटेशन ट्रेनिंग में एक चीज कहा था, दैट वाज कि हम जो भी टॉपिक करेंगे वी विल डू द वर्कशीट साइमल्टेनियसली. एक टॉपिक खत्म, वर्कशीट. इससे आप पूरे तरीके से परफेक्ट हो जाओगे. सो आई एम अगेन enabling the chat. So I want the answer in the chat box itself. पहले आप ये देख लो. Rearrange the alphabets, create a word which makes sense. For example, RDWO. Rearrange करके ये क्या बना? Word. Same, PPALE, apple. ADS, sad. YPPAH, happy. Okay, so we have rearranged this alphabet to create a word which makes sense. Now, okay, now the next topic is sentence. We have completed word. Now it's what is a sentence. Let's check it out. A sentence is a group of words that make complete sense. Difference समझना guys. Word में क्या था? A group of alphabet, right? अब यहां क्या है? A group of sentence, a group of words. जब अल्फाबेट मिलकर वर्ड बनता है तो वर्ड मिलकर सेंटेंस बनता है. तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. कोई भी इतना रॉकेट साइंस नहीं है. अल्फाबेट से वर्ड बनता है, सिंपल लैंग्वेज. अल्फाबेट से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है. सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कोई मतलब होता है. एग्जाम्पल, व्हाट इज नेम? नो सेंस, इनकम्प्लीट सेंटेंस. वर्ड्स तो मिलकर बना एक सेंटेंस बट इसका कोई मतलब नहीं है. नो सेंस. बट द मोमेंट we will write the correct words, what is your name, it makes sense and this is called the sentence. Simple funda. Alphabet मिलाकर word, word मिलाकर sentence जिसका कोई मतलब बनता है. So this is the example. Now rearrange the words to make complete sense. Okay, ये मेरे आंसर के साथ ही आ रहा है, I guess. Okay, example, love I my mother. I love my mother. Want I learn English too. I want to learn English. Clear? Let me check it in chat box. Is it clear, guys? Yes, enable the chat. Okay, clear. Yes, excellent. एंड इसके बाद भी अगर किसी को क्लियर नहीं है तो क्या करना चाहिए उन्हें?
यस, बादाम। एग्जैक्टली, बादाम खाओ। यस, बादाम खाओ। सी, माय स्टूडेंट्स आर सो शार्प। ऐसा सचमुच है क्या गाइस कि बादाम खाने से अकल बढ़ती है? यही लोग रात में बादाम फुलाना भूल जाते हैं। ओके, बैक टू टॉपिक। नाउ वी आर गोइंग टू डू पार्ट्स ऑफ स्पीच। लाइक, मैं ज्यादा स्पीड तो नहीं जा रही हूँ गाइस। लाइक, आर यू गाइस आर कंफर्टेबल? मैं बहुत ज्यादा स्पीड तो नहीं जा रही? यस। ओके, चलो, ठीक है, माय धुरंधर टीम। ओके, आई एम डिसेबलिंग द चैट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। अब हमने वर्ड कर लिया, हमने सेंटेंस कर लिया, अब हमें करना है कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के भी दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट क्या है? द सब्जेक्ट इज अ पर्सन, एनिमल और थिंग दैट इज डूइंग द एक्शन। सब्जेक्ट क्या है? वो महान इंसान है, जानवर है, थिंग है, जिस जो एक्शन कर रहा है। ठीक है। प्रेडिकेट क्या है? इंडिकेट्स दैट इज द एक्शन द सब्जेक्ट इज डूइंग। प्रेडिकेट क्या है? जो एक्शन सब्जेक्ट करता है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। प्लीज गाइस, फोकस ऑन लर्निंग। भूल जाओ अभी कि आप इंग्लिश क्लास में हो। अभी जस्ट मतलब समझ लो, इंग्लिश अपने आप आ जाएगी। अगेन, लंबा लंबा लेक्चर, हार्ड वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख सकते। लेट्स बी नॉर्मल। लेट यूज द नॉर्मल लैंग्वेज। जब सीख जाओगे इंग्लिश अपने आप बोल लोगे। कॉन्सेप्ट एंड बेस स्ट्रांग होना चाहिए। सो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है। प्रेडिकेट क्या है? वो सब्जेक्ट जो हरकत कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है। एग्जाम्पल, माई ब्रदर प्लेज बास्केटबॉल। सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है? ब्रदर के बारे में, तो ये माई ब्रदर हो गया हमारा सब्जेक्ट। जिसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट। ये ब्रदर क्या कर रहा है? क्या एक्शन कर रहा है? प्लेज बास्केटबॉल। तो ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। तो जिसके बारे में बात हो रही है वो हो गया सब्जेक्ट। जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या एक्शन कर रहा है, वो हो रहा है हमारा प्रेडिकेट। सेकेंड एग्जाम्पल, वी विल मेक डिनर। कौन बनाएगा डिनर? वी, हम लोग। किसके बारे में बात हो रही है? हम लोगों के बारे में। हम डिनर बनाएंगे। सो वी हो गया हमारा सब्जेक्ट एंड विल मेक डिनर। एक्शन क्या किया उसने? डिनर बनाएंगे। तो ये एक्शन हो गया हमारा प्रेडिकेट। टॉम एंड जैक आर स्टडिंग। किसके बारे में बात हो रही है? टॉम एंड जैक। तो टॉम एंड जैक हो गया हमारा सब्जेक्ट। आर स्टडिंग, क्या एक्शन हो रहा है? पढ़ाई कर रहे हैं। वो हो गया हमारा प्रेडिकेट। क्लियर है गाइस? वेट, ओके, सो वी हैव 300 मेंबर्स एंड आई थिंक सो सीट इज फुल। इसके बाद आई थिंक सो कोई मेंबर जुड़ भी नहीं पाएंगे। अगर कोई नहीं जुड़ पा रहा है तो इस केस में काइंडली क्या करूं? ओके, इसके बारे में फिर मैं मैम से डिस्कस करूंगी क्या किया जा सकता है। ओके, क्लियर है गाइस? ओके, सो रिकैप। क्लोज योर आईज, जहां पर भी हो क्लोज योर आईज। स्टार्टिंग से देखो, हमने वर्ड पढ़ा। वर्ड, अल्फाबेट मिलकर बनता है। सेंटेंस, वर्ड मिलकर बनता है। सेंटेंस के दो भाई हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में बात हो रही है। प्रेडिकेट क्या है? जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या एक्शन कर रहा है, वो क्या हरकत कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है, इज प्रेडिकेट। क्लियर गाइज? राइट सी। इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आया, लिटरली अब बादाम खाओ। ओके, वंडरफुल। चलो, कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड? Yes. Okay. You can take the screenshot as well. Okay. Okay. Now we are going to do. I have disabled the chat.
लेट्स मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस. कितना कॉम्प्लिकेटेड लाइक लैंग्वेज है ना ये. पार्ट्स भी हैं, टाइप भी हैं, अपने भाई भी हैं, सौतेले भाई भी हैं, सबके बारे में अगर हम नहीं पढ़े तो बेकार है, बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा. तो हमने अपने भाइयों के बारे में पढ़ लिया, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कर लिया, अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में. क्या है ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस? नंबर वन इज डिक्लरेटिव सेंटेंस. ओके, अब ये डिक्लरेटिव क्या है? बहुत भारी भरकम वर्ड है, बट इससे कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल हलवा है. डिक्लरेटिव क्या है? इट टेल्स अस अबाउट समथिंग एंड एंड विथ अ फुल स्टॉप. क्या बोल रहा है? इट टेल्स अस अबाउट समथिंग, ये हमें जानकारी देता है किसी के बारे में, जिसका सेंटेंस जो है वो एंड होता है फुल स्टॉप में. इट टेल्स अस अबाउट समथिंग, किसी के बारे में बताता है, जानकारी देता है. और इसकी खासियत क्या है कि सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप रहता है. एग्जाम्पल, माई ड्रेस इज ब्लू. मेरा ड्रेस के बारे में इसने और क्या जानकारी दी? आई हैव ड्रेस, बट ड्रेस इज ब्लू. किसी भी चीज के बारे में जानकारी देना, ड्रेस ब्लू है, सामान के बारे में जानकारी देना, और एंड किससे होता है? फुल स्टॉप से. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द डॉग इज बार्किंग. डॉग क्या कर रहा है? भौंक रहा है. डॉग के बारे में जानकारी दिया, क्या कर रहा है? डॉग भौंक रहा है. और एंडिंग किस में है? फुल स्टॉप से एंडिंग है. सो इट टेल्स अस अबाउट समथिंग एंड एंड विथ अ फुल स्टॉप. दैट इज कॉल्ड डिक्लरेटिव सेंटेंस. क्लियर गाइज? जल्दी जल्दी बता दो चैट बॉक्स में, मैं झट से इनेबल करूं एंड देन फिर मैं डिसेबल करूं. क्लियर गाइज? ओके, सी, एक्सीलेंट. एक बार और आया था शायद, आई थिंक सो, किसी ने बोला एक बार और. नॉट क्लियर. चलो, कंसंट्रेशन के साथ करो. हरलीन, आई थिंक सो यू आर अ स्टूडेंट, बच्चे हो, जूनियर सेक्शन में हो अगर, तो प्लीज क्लियरली समझो, इट्स वेरी इजी. डिक्लरेटिव सेंटेंस क्या है? डिक्लरेटिव सेंटेंस पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का पहला पार्ट है, जो क्या बताता है? किसी भी चीज के बारे में जानकारी देता है. सिंपल लैंग्वेज. डिक्लरेटिव क्या है? किसी की चीज के बारे, किसी भी चीज के बारे में जानकारी देना, और उसके सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगा रहता है. सिंपल. किसी भी चीज के बारे में जानकारी देना जो एंड होता है फुल स्टॉप के साथ. माई ड्रेस इज ब्लू. द डॉग इज बार्किंग. सो किसी भी चीज के बारे में जानकारी देना इज डिक्लरेटिव सेंटेंस. क्लियर गाइज? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट. इंटरोगेटिव. इतना भारी भरकम वर्ड, डिक्लरेटिव से भी भारी भरकम वर्ड, इंटरोगेटिव, बट ये सबसे इजी है. जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है. इंटरोगेटिव, इट आस्क्स समथिंग एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. सिंपल. इंटरोगेटिव के मतलब सिर्फ इतना ही समझ लो, क्वेश्चन पूछना. जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल. डिक्लरेटिव जानकारी देता है, इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछता है. इट आस्क्स समथिंग एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. किसी भी सेंटेंस के एंड में जब आप क्वेश्चन मार्क देते हो तो समझ जाओ वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है. एग्जाम्पल, इज दिस ड्रेस ब्लू? क्या ये ड्रेस ब्लू है? इज द डॉग बार्किंग? क्या ये डॉग भौंक रहा है? क्वेश्चन मार्क. सेम सेंटेंस है, बट एंड क्वेश्चन मार्क पे है. सो दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. डिक्लरेटिव, जो बताए, किसी के बारे में जानकारी दे. इंटरोगेटिव, क्वेश्चन करे. अब नेक्स्ट हम चलते हैं. ओके, लेट मी डिसेबल दी चैट. यस. नेक्स्ट हम चलते हैं एम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव, मेरे साथ साथ जहां पर भी हो बोला करो. वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, हमें सब परफेक्ट करना है. एंड फिर हमें फॉरेनर बन जाना है. उसके बाद हम लड़ाइयां भी करेंगे तो हम इंग्लिश में करेंगे. ओके. सो यस, इम्पेरेटिव, थोड़ा सा नजाकत. इम्पेरेटिव,
अब इसको इम्पेरेटिव भी बोल सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, इम्पेरेटिव हमारे इंडियंस तो बोल ही सकते हैं इम्पेरेटिव, बट हाँ थोड़ा सा स्टाइल ऐड करने के लिए थोड़ा सा स्टाइलिश बना देते हैं इम्पेरेटिव। ओके, सो इम्पेरेटिव क्या है? इट टेल्स समवन टू डू समथिंग एंड एंड विथ अ फुल स्टॉप। ये क्या करता है? ये कमांडेबल है, ये किसी को कुछ करने बोलता है। इट टेल्स समवन टू डू समथिंग, किसी को भी काम दे दिया, यार ये काम कर दो। तो जिस भी सेंटेंस में आपको ऐसा लगे कि वो किसी को रिक्वेस्ट कर रहा है, कमांड कर रहा है, और वो सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप है, दैट इज imperative sentence. It tells someone to do something and ends with a full stop. Example, iron my shirt for me please. रिक्वेस्ट किया, प्लीज आयरन माई शर्ट, मेरे शर्ट को प्रेस कर दो। सो आयरन माई शर्ट फॉर मी प्लीज, रिक्वेस्ट किया। वाइप द विंडो, कमांड दिया, विंडो खिड़की, वाइप पोछना, पोछ दो विंडो, कमांड किया। चाहे आप कुछ भी करने को बोलो, चाहे वो रिक्वेस्ट फॉर्म में बोलो या कमांड देकर बोलो, दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, लेट मी चेक दी चैट बॉक्स, क्लियर है? ओके, इज इट क्लियर गाइज? यस, अरे बैठे हुए थे क्या सी लिखने के लिए? जैसे ही ऑन किया सी 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 आने लगा। ओके, यस, चलो ठीक है। जो भी नो नो बोलेगा उसको मैं अनम्यूट करूंगी कि नो क्यों है, क्या नहीं समझ में आया? ओके, अभी तक तो ऐसा नहीं है। ओके, चलो इम्पेरेटिव नो। राघव, लेट्स चेक इट आउट, राघव को पकड़ते हैं। पार्टिसिपेंट राघव, RA, yes, Raghav, I have given you the option, Raghav. Can you unmute yourself? मैडम राम राम। राम राम, बताइए। क्या हाल है मैडम? बहुत अच्छा, बताइए आपको क्या नहीं समझ में आया इसमें? मैडम कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्यों ऐसा? मैम थर्ड क्लास में फेल हो गया था। ओहो, ये मैंने ज्वाइन कर ली गलती से। तो फिर इसके लिए आप रिजाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैम जो मेरे पैसे लगे उसका क्या करूं? तो वो तो आप उनसे कनेक्ट करोगे ना, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप सीखो। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो कोई भी इंसान नहीं सीख सकता, कोई भी अच्छा ऐसा मैडम, प्लेटफॉर्म मैडम नहीं थर्ड है। क्लास में फेल हो गया था मैं तो तो उससे क्या दिन हुआ? भर। उससे क्या हुआ, यहाँ तो बेसिक से शुरू हो रहा है, A to Z तो आता है ना। नहीं वो भी नहीं आता मैडम। तब तो फिर आपके लिए वो तो ये अपने नहीं है स्कूल वालों ने। प्लेटफॉर्म। सॉरी, तब तो ये आपके लिए है ही नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट, we use imperative to do request or give order. Yes, right, Hardik. Let's check it out. Exclamatory, अभी डिसेबल करते हैं, बाकी तो आई थिंक सो सबको क्लियर है। We use imperative to do request or give order. Okay, चलो, exclamatory. So declarative, interrogative, imperative and exclamatory. Exclamatory क्या है? It expresses a strong feeling and ends with a exclamation mark. It expresses a strong feeling. जब आप अंदर का एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जाहिर करते हो, चाहे वो खुशी का हो, दुख का हो, एक्साइटमेंट का हो, लॉस का हो, और जिस सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, एक छड़ी और उसके नीचे एक डॉट, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। सो जिस भी सेंटेंस के अंदर आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग जाहिर करते हो, अपने अंदर के एक्साइटमेंट हो या सैडनेस हो, कुछ भी, एंड जो एंड होता है एक्सक्लेमेशन मार्क में, वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई लॉस्ट माई वॉलेट, मैंने अपना पर्स खो दिया। ये क्या है? एक शॉकिंग भी है, नेगेटिव शॉकिंग है, उदास है, आई लॉस्ट माई वॉलेट, एक फीलिंग्स को अंदर से दिखाया, एंड एंड किस में हो रहा है? एक्सक्लेमेशन मार्क में हो रहा है।
Second example, oh my God, you are here. Oh my God, you are here. Excitement, किसी को देखकर, कोई गेस्ट आ गया अचानक से, कोई आपका दोस्त आ गया, कोई भाई आ गया, बहन आ गया, जिसको देखकर आप शॉक्ड हो गए और आप उसको कोई ओह माय गॉड यू आर हियर। तो ये एक फीलिंग है जो आप अपने अंदर से जाहिर कर रहे हो, एंड एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। सिंपल, क्लियर, क्लोज योर आईज जहां पर भी हो। अगेन रिकैप, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट का एक्शन, टाइप्स ऑफ सेंटेंस डिक्लरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। डिक्लरेटिव क्या है? जो किसी के बारे में जानकारी देता है, एंड एंड विद अ फुल स्टॉप। इंटरोगेटिव क्या है? जो क्वेश्चन पूछता है और इसलिए उसके एंड में क्वेश्चन मार्क रहता है। इंपेरेटिव क्या है? कमांड या रिक्वेस्ट कर कर काम देना किसी को, दैट इज इंपेरेटिव। एंड एक्सक्लेमेटरी क्या है? जब हम अपना स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को जाहिर करते हैं विद द एंड एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। लेट मी चेक द चैट बॉक्स। ओके, क्लियर है गाइस? ओके, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। नाउ एक चीज और मैं आपको बताऊं गाइस, आई एम सुपर एक्साइटेड बट येट इमोशनल एज वेल। आई नो दिस इज माई ड्रॉबैक, मैं बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती हूँ, बट बीइंग अ मेंटर मेरा काम है आपको गाइड करना। आई विल गिव माई 100%, बट अगर आप अपने तरफ से जिद नहीं पकड़ोगे कि नहीं करना है, तो आपको कोई भी इंसान हेल्प नहीं कर सकता। एंड रेस्पेक्टफुल नेचर, लविंग नेचर, केयरिंग नेचर, ये आपको आगे बढ़ाने वाला है। किसी को नीचे दिखाना, किसी को यू नो ईगो में बात करना, कुछ नहीं होने वाला। दीज आर द लाइफ लेसन दैट आई एम टेलिंग यू। इंग्लिश के साथ ये भी जरूरी है, क्योंकि आप इंग्लिश सीख लोगे एंड उसके बाद भी मुंह से जब बोलोगे तो गंदा ही बोलोगे, तो कोई फायदा नहीं है। डिसिप्लिन आपके कल्चर को दिखाता है कि आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू गिव रिस्पेक्ट, इफ यू डोंट नो हाउ टू पुट योर क्वेश्चन पोलाइटली, सॉरी टू से, मत पढ़ो इंग्लिश, वो भी फायदा नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा, ना हो पाएगा। ओके, थैंक यू फॉर ऑल योर लव। अभी तक यहां तक सब क्लियर है गाइज? यस, अब जैसे किसी का एक आंसर है, मैम ये सब मुझे आता है, वेरी गुड, अगर आपको आता है। अगर हम बेसिक टू एडवांस कर रहे हैं, तो आपको क्या यहाँ पे हो सकता है 60%, 50% मेंबर्स को आता है, किसी को कुछ भी नहीं आता। अभी आपने देखा एक जन कह रहा है अल्फाबेट ही नहीं पता, है ना? तो उस केस में हमें सबको लेकर चलना है। अगर आपको सब कुछ आता है तो फिर ये इंग्लिश क्लास नहीं है आपके लिए, फिर तो आपको सब कुछ ही आता है, फिर हम थोड़ा आगे चलेंगे, ठीक है? और अगर आपको आगे सीखना है, हैव सम पेशेंस, क्योंकि जब डिफिकल्ट टॉपिक्स आएंगे फिर वो आपके लिए होगा। बट यहाँ पे जब हम वर्क कर रहे हैं साथ में, तो हमें सबको लेकर चलना है। ओके, नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या हम ये अभी चालू करें गाइस? एक सेकेंड, हाँ गाइस, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा स्टॉप कर रही हूँ स्क्रीन, एंड वेट, हाँ। जस्ट गिव मी 1 minute। ओके, यस, मैम इसके नोट्स एज अ पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, नहीं आप स्क्रीनशॉट ले लो,
आप स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो पहले ही बोला आप स्क्रीनशॉट ले लो, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। एक सेकंड, मैं आप लोगों को एक वर्कशीट दे दूं पहले। आई डोंट नो, ये वर्कशीट आपका खुल नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आई कैन सी मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। आई थिंक सो इतना तो आपके लिए क्लियर है। बाकी वर्ड फॉर्मेशन एंड सेंटेंस फॉर्मेशन ये सारा आपको असाइनमेंट में खुद ब खुद मैं दे दूंगी आफ्टर दिस क्लास, एंड वो आप आराम से कर सकते हो। ओके, चलो ठीक है। स्क्रीन शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने स्क्रीन स्टॉप किया है बेटा। मैंने अभी स्क्रीन स्टॉप किया है। मैं कुछ आप लोगों के लिए कर रही थी। थैंक यू हरलीन, थैंक यू सो मच। काश ये सब समझ पाते। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने पीपीटी ऑफ कर दिया। मैं एक बार ओपन कर लूँ, फिर स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, फिर आप ले लेना स्क्रीनशॉट। ओके, यस, गॉट इट। हाँ, अब देखना स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं, देन यू कैन टेक दी स्क्रीनशॉट। यस, हो रहा है। मैं फुल स्क्रीन कर दूं, फिर आप ले लेना। यस, टेक दी स्क्रीनशॉट। चलो, अजरा, बट ये जिनका मिस हो रहा है ना, यू हैव टू मेंटेन दी टाइम। ये मेरे क्लास का ना एक बेसिक रूल है, बी पंचुअल। ये लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट एन एग्जाम्पल। ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग मिलेगा, 100% यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। किसी को भी कोई भी डिफिकल्टीज हो सकती हैं। कोई अगर क्लास किसी भी कारण से अटेंड नहीं कर पा रहा है, तो वो रिकॉर्डिंग से कवर अप कर सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप लाइव करोगे ना, तो वो ज्यादा मजा आएगा। बिकॉज आगे हम वर्कशीट भी करने वाले हैं, तो वो एक अच्छा मजा आएगा आपको। रिकॉर्डिंग आप जब सुनोगे तो आपको खुद लगेगा कि काश लाइव हम होते। यस, ये आप ले लो स्क्रीनशॉट। एग्जाम्पल, ये लेने की जरूरत नहीं है, ये ले लो। ये इंपॉर्टेंट है, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। आज मैं आपको वो कराऊं या नहीं कराऊं, बस यही सोच रही हूँ। लेट्स, आई थिंक सो वी शुड स्टार्ट। थैंक यू हरलीन। आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। करवा दो मैम, यस, मुझे भी यही लग रहा है, मैं करवा दूं। थैंक यू अंजलि। ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना कि बहुत ज्यादा लोड पड़ जाएगा कि मैम ने एक ही दिन पे हमारी हालत खराब करवा दी। यस, ज्यादा हो जाएगा। सी, मैम रिकॉर्डिंग भेज देना। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। दो कंप्लीट कर लेते हैं, नाउन प्रोनाउन अपने इजी हैं, ये कर लेते हैं, फिर आगे का हम कर लेंगे बाद में। ठीक है, चलो डिसेबल कर देती हूँ एक बार चैट को। ओके, अगर कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया है ना, तो सिंपली जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे ना, तो उसको पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यार इतना तो आप लोग दिमाग लगा ही सकते हो कि अगर यहाँ नहीं ले पाए तो वहां हम ले सकते हैं। रिकॉर्डिंग आफ्टर दिस क्लास मैं तुरंत दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो लेट्स डू दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम जब बोलते हैं, मुंह खोलते हैं, जब इंग्लिश हम बोलते हैं, तो उसमें कुछ स्पीच का हमें ध्यान रखना पड़ता है। एंड वो स्पीच क्या है, लेट्स चेक इट आउट। कि हम पहले करेंगे ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब क्या है, ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं। तो वी हैव 8
पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 PIGHT स्पीच होते हैं अपने। ओके, नंबर 1 इज नाउन। ये नाउन क्या है? नाउन नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन क्या है? नाउन वो वर्ड है, वो नाम है जो किसी इंसान का भी हो सकता है, जगह का भी हो सकता है, थिंग्स का भी हो सकता है और आइडिया का भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हॉर्स, एप्पल, मॉस्क, ब्रेन, आसिन, थॉट। ठीक है, क्लियरली अब इस चीज को समझते हैं विदाउट एनी। मैं ना नेक्स्ट क्लास में इसका एक अलग से और पीपीटी बना दूंगी आप लोगों के लिए, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू कि मैं इंडिविजुअली आपको करवाऊं। अभी के लिए जस्ट मैं एक ब्रीफ दे रही हूँ। नाउन क्या है? जस्ट रिमेंबर, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। किसी भी इंसान, जानवर या इन थिंग्स का नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल राम इज ईटिंग फूड, तो यहाँ पे नाम क्या है? राम। राम इज ईटिंग फूड, तो ये जो राम हो गया ये हमारा हो गया नाउन, क्योंकि ये एक नाम है। किसका नाम है? इंसान का नाम है। देयर इज अ ब्लैक कैट, यहाँ पे नाउन क्या है? एनिमल कौन सा आ रहा है? किस एनिमल का नाम आ रहा है? क्योंकि नाम है कैट, तो ये कैट हमारा हो गया नाउन। सिट ऑन द चेयर, चेयर क्या है? थिंग है, नाम है सामान का, सो ये चेयर हो गया हमारा नाउन। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में ना इंडिविजुअली डिवाइड कर दूंगी आप लोगों के लिए, तो वो आपके लिए और भी अच्छा होगा, समझ पाओगे बहुत अच्छे से। सो दिस इज नाउन। नेक्स्ट वी हैव प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन नाउन का वो भाई है जो नाउन का जगह ले लेता है। प्रोनाउन रिप्लेस द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज इन द सेंटेंस। प्रोनाउन सिंपली नाउन का जगह ले लेता है, हमेशा उसकी जगह को हड़प लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला राम इज प्लेइंग, प्रोनाउन पे हम क्या कहेंगे? ही इज प्लेइंग, क्योंकि राम एक लड़का है और लड़के के लिए हम ही इस्तेमाल करते हैं, लड़की के लिए हम शी इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि राम इज प्लेइंग, हम अगर उसके नेक्स्ट एग्जाम्पल में देंगे ही इज प्लेइंग, तो ये राम का जगह किसने लिया? ही ने ले लिया, तो ये ही आपका हो जाएगा प्रोनाउन। सो जब भी नाउन का जगह कोई लेता है वो हो जाता है प्रोनाउन। ओके, सीता इज अ गुड गर्ल, शी इज वेरी ब्यूटिफुल। सीता इज अ गुड गर्ल पहले सेंटेंस में इस्तेमाल किया, दूसरे सेंटेंस में क्या किया? शी इज वेरी ब्यूटिफुल, सीता का जगह कौन लिया? शी, तो ये शी हो गया हमारा प्रोनाउन। तो सिंपल फंडा, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन का जो जगह लेता है वो हो जाता है प्रोनाउन। सो बेसिकली दोनों भाई होने के बावजूद भी लड़ते रहते हैं, इसलिए एक दूसरे के जगह को हड़प लेते हैं। क्लियर? एक बार मैं चैट बॉक्स कर दूं। यस, इनेबल। क्लियर गाइस? ओके, वेल डन, क्लियर। ओके, स्लाइड शो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको प्रीवियस स्लाइड की अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप जो है वो ले लेना, लाइक रिकॉर्डिंग मैं जब दूंगी उससे आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, इतना टेंशन वाली बात नहीं है। यस, प्रोनाउन इट्स अ वर्ड दैट रिप्लेस द नाउन। ओके, ओके, नाउ आई एम जस्ट, इसके बाद में अभी और नहीं बढ़ूंगी क्योंकि थोड़ा सा एडजेक्टिव एंड देन वर्ब, एडवर्ब, थोड़ा सा फिर धीरे 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 ये ना क्रिटिकल होता जाएगा। सो इन केस थोड़ा सा भी इसको बंद करते हैं, वरना सच में बादाम खाना पड़ेगा। ठीक है, यस, टाइम भी हमें देखना पड़ता है। वी हैव 10 मिनट्स एंड इन दिस 10 मिनट्स कुछ जरूरी सूचना
कुछ जरूरी नोटिस? थैंक यू नाजमीन। आई एम ईटिंग, यस, गुड। सो यस, किसी का कोई भी डाउट है क्लास में तो आई थिंक सो इट्स इट्स क्लियर, ऑलमोस्ट क्लियर। ओके, हिंदी में बताइए। हिंदी में तो बता रही हूँ इसलिए तो आई नो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनको इंग्लिश में दिक्कत होती है, इसलिए तो आज हम हिंदी भी बोल रहे हैं ना। वरना अगर हम पूरे क्लास में, कई कई बार क्या होता है कि कुछ टीचर्स आती हैं एंड फुल ऑन इंग्लिश। अरे भाई, सामने वाला बंदा जो आया है बेसिक इंग्लिश के लिए, अगर आप उसके सामने एक लंबा चौड़ा इंग्लिश बोलोगे तो फिर वो भैया इंग्लिश सीखने आ ही क्यों रहा है? कर लो 3 महीने के एंड में, 3 महीने के लाइक लास्ट 15 डेज में हम सिर्फ इंग्लिश ही करेंगे, और मैं भी करूंगी इंग्लिश में बात और आप भी करोगे सिर्फ इंग्लिश में बात। फिर वहां पे मेरे तरफ से रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, नो हिंदी। भले ही टूटा फूटा बोलो पर बोलो। थैंक यू, थैंक यू कल्याणी। ओके, टेलीग्राम, यस टेलीग्राम पे यही यही मैं कुछ पॉइंट क्लियर कर दूं, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, क्योंकि मुझे प्लीज गाइज, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई नो 2 दिन हुए हैं एंड यू गाइज आर अटैच, सब कुछ है, यू गाइज आर लाइकिंग मी, आई एम लाइकिंग यू ऑल, लेकिन पर्सनल मैसेज थोड़ा सा अवॉइड करना, ठीक है? इस केस में कुछ भी दिक्कत है, कनेक्ट टू योर अपलाइन, योर रेस्पेक्टिव पर्सन जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। एंड इसके बाद आप जो है उनसे चीजें मांगना, क्योंकि सारी अपडेट उनको जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास चैनल नहीं है जहाँ पे आपको क्लास डिटेल्स आते हैं, तुरंत मांगो कि मैम ने बोला है चैनल प्रोवाइड करने जहाँ पे क्लास की अपडेट्स आती हैं। सेकंड, सबमिशन कहाँ करना है? टेलीग्राम चैनल अलग से है, 2 चैनल है, एक डिटेल्स चैनल जहाँ पे आपको क्लास डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाती है। दूसरा होता है टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं। तो टेलीग्राम चैनल भी मांगो अपने सीनियर पर्सन से कि मुझे टेलीग्राम चैनल दीजिए, मैम जो असाइनमेंट दे रही है मुझे वहां पे सबमिट करना है। तो आपको सिर्फ असाइनमेंट सबमिट करना है, कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस नहीं सबमिट करना है कि मैम ने जो पढ़ाया पूरा लिख के दे दिया एंड मैम इज फुल इम्प्रेस्ड। नहीं, सिर्फ असाइनमेंट। आप अपने लिए नोट्स बनाकर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इन फ्यूचर कभी आप ट्रेनर बने तो ऐसे ही उनको गाइड करना, ठीक है? तो अपने घर पे बच्चों को ट्यूशन देना चालू करो। हाउसवाइफ्स हैं जिनके बच्चे हैं, वो लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ पे क्लास लो, क्योंकि बेसिक टू एडवांस जा रहा है। ओके अनरीत, ओके ओके, मैं आफ्टर दिस क्लास आई एम गोइंग टू गिव यू दी असाइनमेंट, यहाँ पे तो नहीं बता सकती मैं। असाइनमेंट आफ्टर दिस सेशन, हर सेशन के बाद आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी सबसे पहले, एंड फिर आपको अपने आप असाइनमेंट दे दिया जाएगा, ठीक है? टेलीग्राम चैनल पे असाइनमेंट सबमिट कर देना। इंग्लिश ग्रुप में आप नहीं भेज सकते, वहां पे सिर्फ मैं मैसेजेस कर सकती हूँ फॉर दी नोटिस एंड इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स। टेलीग्राम पे आप मैसेजेस भेज सकते हो, वहां पे अपनी चीजें भेज सकते हो। मैं दे दूंगी आफ्टर हर सेशन, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू दी रिकॉर्डिंग। जैसी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको खोल के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्लियर है? ओके, क्या नाम था उनका? अब अनरीत ना अवनीत कुछ ऐसे ही था ना, 1 मिनट। अवनीत था क्या? नहीं, अवनीत तो नहीं था। अवनीत, ओके ओके ओके, गॉट इट। अनरीत, यस अनरीत था। अनरीत, यस अनरीत। I have given you the option, you can unmute yourself. Good evening, ma'am. Very good evening. How are you, ma'am? Yes, am I audible? आवाज आ रही है अनरीत? Yes, yes, ma'am. यस अनरीत, बताओ क्या बोलना था, बिंदास बोलो क्या बोलना था। आप बहुत अच्छा टीच करते हो। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच। कौन क्या करती हो आप अनरीत? मैम, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 6th क्लास। एक्सीलेंट। तो अब यहाँ आप देखो गाइज, वी हैव स्टूडेंट ऑल्सो जो क्लास 6 में है। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि डायरेक्ट मैं आपको एक ऐसे टॉपिक में ले जाऊं जो इन बच्चों की हेल्प ना हो पाए? अगर कोई ऐसा मेंबर है जिनको सब कुछ आता है, तो काइंडली आप एडवांस इंग्लिश क्लास में जुड़ सकते हो मेरे साथ, जो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। तो ओके आप मैम। वहां पे जुड़ सकते हो। बट यहाँ पे अभी जैसे अनरीत है, क्लास 6 की भी बच्चियां हैं,
आप देखोगे क्लास 3 के भी होंगे, 10 के भी होंगे, 12 के भी होंगे, वर्किंग प्रोफेशनल्स भी होंगे। तो हमें सबको लेकर चलना है। यस, नहीं नहीं, मैं चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। वेट हरलीन, बाकी सारे मेंबर्स थोड़े पेशेंस के साथ, ठीक है? मैं जब दूंगी आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, क्या होता है। ठीक है, हैव सम पेशेंस। यस अनरेत, और आपको कुछ बोलना है? थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कॉम्प्लीमेंट। नो मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके, लव टू हियर योर वॉइस। ओके मैम, थैंक यू। यू आर वेलकम। प्रवीण प्लीज मैम, मुझे भी बोलना है। देखो यार, मैं इमोशनल हूँ इसलिए मैं दे दे रही हूँ आप लोगों को, वरना ये मुझे ना अलाउड नहीं है। हम्म, एक मिनट, मैंने मैसेज ऊपर सीन ही नहीं किया, इतना जल्दी जल्दी मैसेज जा रहा है। प्रवीण, ओके प्रवीण है आपका नाम। प्रवीण, ओके प्रवीण, आई हैव गिवन यू दी ऑप्शन, बताइए। Hello, यस, how are you, ma'am? एब्सोल्युटली फाइन, हाउ आर यू? I'm good, ma'am. I'm absolutely good. तो क्या शेयर करना है प्रवीण आपको? मैम बहुत दिन से मैसेज कर रहा था मैं आपको अनम्यूट कर दो प्लीज, इसमें मुझे मैंने आपसे बात एक्चुअली करनी नहीं थी। देखा प्रवीण। एक्चुअली होता क्या है ना, कई बार कुछ मेंबर्स को लगता है ये लाइव नहीं है, मैम अपना बोले जा रही है, हम अपना मैसेज करते जा रहे हैं, बट गाइस दिस इज लाइव, ये समझो। एंड हाँ एक मैं दिन ऐसा भी आएगा जहाँ पे हम वीडियो कॉलिंग पे एक साथ होंगे, हम लाइव सेशन लेंगे, मतलब बिल्कुल वीडियो कॉल पे एक दूसरे को देखकर, तब शायद उस दिन बिल्कुल भी क्लियर हो जाए कि मैं जीवित इंसान हूँ। ओके, यस प्रवीण। नो नो यस मैम। मैम बस आप ऐसे मुझे पढ़ाते रहो, और मैम मुझे मुझे एमएनसी में जॉब करनी है। एक्सीलेंट। एक्चुअल में या एक्चुअल में मेरी ना शादी हो चुकी थी, और घर में इसमें कोई है नहीं खास, कमाने वाला मैं ही हूँ, और जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं क्लास वगैरह अपनी स्टडी वगैरह ओहो, कर पाता हूँ। सो ठीक है, तो स्वीट मेरी ऑफ प्रॉब्लम यू। ज़्यादा है। हाँ मैम, प्रॉब्लम ज़्यादा है, और दो छोटे बच्चे भी हैं, एक तो 4 साल का है, एक तो 3 साल का है। अच्छा, आवाज से तो खुद ही ज्यादा बड़े नहीं लग रहे हो यार, दो दो बच्चे हैं। गुड। हाँ वो मतलब करनी पड़े, वो मैम करनी पड़ी ना शादी की, अभी पापा की ज़्यादा एजेड है, और ओके, मुझे कुछ करना भी है आगे। हम तो नहीं बिल्कुल करो, मेरा जो बिल्कुल करो प्रवीण, ये तो अच्छा लग रहा है। एंड अब जब दो बच्चे हैं ना, तो उनको लेकर बैठो, इनफैक्ट अपनी वाइफ को भी लेकर बैठो, सब मिलकर क्लास लो। बहुत मजा आएगा एंड चीजें सीख पाओगे। एक फुल ऑन एंटरटेनमेंट भी है यार, फन के साथ लर्न करेंगे। डंडा लेकर नहीं पढ़ाना है, डिजिटल डंडा तो ऐसे भी नहीं मार सकते, तो इस केस में फन के क्योंकि साथ मैम लर्न करेंगे। इतने महंगे महंगे क्लासेस हैं, तो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने तो एक सर ने बोला था, तो मैं वहाँ से कनेक्ट हो गया आपके साथ। तो अब मैं यहाँ से क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ, तो बिल्कुल लोग, मैं सोच यार रहा ऐसा इमोशनल बात मत क्या करो, लिटरली मैं थोड़ा सा इस केस में बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। और गॉड ब्लेस यू हूँ। प्रवीण, बहुत अच्छा लगा। आई थिंक सो आपके लिए कमेंट भी आ रहा है, अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। एंड गाइज आई रियली एक्सपेक्ट कि आप लोग ऐसे ही एक दूसरे को सपोर्ट करो, किसी के दुख में, किसी के खुशी में शामिल होना और अच्छी अच्छी बातें बोलना, यही आपका कल्चर है और यही आपको दर्शाता है कि आप कैसे हो। तो जो कमेंट मैं देख पा रही हूँ प्रवीण के लिए, इट्स रियली वेरी टचिंग। मजा आ रहा है कि यार यू गाइज आर सपोर्टिंग ईच अदर। बहुत अच्छा लगा प्रवीण बात करके, सो टच्ड, वेल डन। थैंक यू। You are getting comments also. You can do it, Praveen. God bless you, brother. Excellent. Best of luck, Praveen. So, see, this थैंक is यू सो called मच। unity. यस मैम। Okay. Thank you so much, Praveen. Love to hear. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। Okay. यार तुम लोग तो मुझे इमोशनल कर दोगे, मैं ज्यादा देर इसका मतलब इंटरेक्ट भी नहीं कर सकती। ओके ओके, वी हैव 1 more minute। नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन सैटरडे। आई थिंक सो सैटरडे हमारा सर्टिफिकेट सेरेमनी भी है लास्ट बैच का। मैं एक बार मैं नहीं चाहती तो आप लोगों का क्लास मिस हो, सो डेफिनेटली सैटरडे क्या क्लास चाहिए आप लोगों को क्या, या नहीं, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो, फिर मैं लास्ट बैच का सेशन, दूसरा सेशन रख लूंगी। क्लास चाहिए गाइस, एक दिन का छुट्टी ले लो यार, अरे बाप रे।